तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी डुआन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम होटल के लिए रवाना होने वाले हैं। ये हमारा ग्रुप था। नमस्ते। Okay, everybody, welcome to the Thailand. Nah? My name is Kim. Kim. K-I-M. Okay, Kim. Okay. I stay with you until the last departure back to home. Okay? Okay, everybody, now welcome to the Thailand. Nah? The first one, our program. When you come to the Thailand, in the Thailand, totally. When we go to the about explain things. Okay? Hindi go to the okay? So the first one is the story of the Thailand. Okay? When you come to the Thailand, we have totally 77 states. Okay? 77 states are the capital city in the Thailand. We call it Bangkok. Okay? Bangkok city or this area. But in the Bangkok city, we have a two airports. Okay? First one, Don Mueang, DMK. This one, the old airport or the first airport in the Thailand, DMK airport. Or Thailand way we call it Don Mueang. But second airport, we call it Suvarnabhumi. Between Pattaya and Bangkok. Okay? Okay, when you come to the Thailand, we have four cities, the best for the tourism. First one, Bangkok. Bangkok is good for the shopping. It's good for the Buddha temple shopping. That's one we have the last day. Okay, for the Bangkok. The second one, Pattaya. Pattaya is good for the enjoy life. After lunch, we have a Art in Paradise 3D museum. Okay, this one also nice. After that, we don't have a dinner, but I will drop near the walking street. Okay, only drop, not pick up. That's one you can enjoy yourself. And then I let you know time again because tomorrow we have a Coron Island. Enjoy with the speedboat, beach, swimming, then ski, parachute, that one. Okay, I let inform you again. And third, tomorrow, Nong Nus Village, Coron Island. The last day, Nong Nus Village. This one, Coron Island. No, not Corona. Coron Island. Not Corona. Okay. Coron Island, okay? Okay. And then the last day, we have Nong Nus Village, okay? But now, I have to give you come for the record. Because you are so tired to fly and then spending a lot of time in the reservation. Okay? We take a time here to the Pattaya Beach, not traffic, maybe 2.5. Okay? Straight direct to the hotel, check in, and then breakfast and check in. Okay? Good night, everybody. Oh, okay. No. Good one. You take a my contact number. गिनती भूल गए शांतनु जी। itu lala mantap. Say hi. Say hi. Say hi. How are you?
क्यों? पेमेंट के लिए। विनोद कुमार, किसको पेमेंट करोगे? विनोद कुमार, गौर करवाएं, छोड़े एक मिनट। हाँ, अटेंशन क्रू, यस, अटेंशन क्रू, अटेंशन क्रू, वी आर रेडी टू फ्लाई। ये देखो, ये जल्दी आ जाओ। एक मास्क में फोटो भेज। Let's go, let's go. यस, चलिए, we have to leave, we have to leave. We don't have. श्रवण कुमार, चलो घनश्याम जी, चलो चलो। Now we are at Mind Resort, and beside this, I suddenly saw this Indian flag and in an Indian restaurant where we had lunch, and now we are move forward to our next visit palace, that is art museum, and these are our team. These all are. So let's go. तो हम लोगों ने कर लिया है लंच, और लंच एक इंडियन होटल में है, और खाना तो बहुत शानदार है। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है पनीर की सब्ज़ी, और क्या गज़ब सब्ज़ी बनाई है, शानदार। इसके साथ ये रायता तो कंपलसरी है, ठीक है, बिना तो रंजे को ना बना तरी, और इसके साथ में ये दाल, काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम लोगों ने यही प्रेफर करी है, ताकि हमारे साथी सारे, ये महेंद्र जी, बहुत ढंग से शुरू हो गया है, फोटो सेशन कंप्लीट हो गया है, खाना, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। कहाँ चलते हैं? इस स्कूटी को तो मॉडल ही नहीं सोचे पाया। दैट तो ये मिली है कमाल की चीज़, और अब आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है सामने से कुछ इस तरह से दिखती है। अब मैं जैसे जैसे साइड में जाऊंगा, ये पेंटिंग जो है, क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग है, तो ये मेरे साथ साथ मूव करेगी। मैं मूव कर रहा हूँ, और ये पेंटिंग भी मेरे साथ साथ मूव कर रही है। और आप देखो, ये इसका साइड व्यू, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से बाहर की ओर बनाई हुई पेंटिंग है। ऐसा इसमें ही नहीं, आप यदि इस पेंटिंग को देखेंगे तो कुछ ऐसा ही नज़ारा इसमें भी मिलेगा आपको। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, और अब मैं चलूँगा थोड़ा सा साइड में, तो ये पेंटिंग जो है, ये मेरे साथ साथ मूव कर रही है। ओह माय गॉड, हम लोग एंटर होने वाले हैं एक, ओहो माय गॉड, क्या जगह है, सबसे शानदार जगह, ओहो माय गॉड। बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ। ओह माय गॉड, ये है आर्ट इन पैराडाइज का स्टूडियो, और ओह माय गॉड, हम भी इधर ही है, आपको पता होना चाहिए, इस हरे हरे पहाड़े के अंदर हम भी इधर ही का आश्रय आए हुए हैं। आप थोड़ा पीछे जाओ। तो भाई क्या गजब,
क्या शानदार माहौल है। ओहो हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये था आर्ट एंड पैराडाइज और क्या खूब चीज़ बनाई है। इंडिया में है, सिंगापुर में है और उसके बाद में यहाँ पटाया में भी ये 3D आर्ट म्यूज़ियम है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपने इससे पहले वीडियोस तो देख ही लिया आराम से, तो भाई क्या औसम चीज़ बनाई है। बट ये सारी जो है ना, ये इसकी खुद की ऐप है आर्ट इन पैराडाइज के नाम से, उसके साथ ही चलेंगी, उसके अलावा ये नहीं चलती है। बाकी ये हमारे महेंद्र जी भाई साहब ने आज पूरा आनंद लिया है पूरे इस पूरे और इसके अंदर हमारे मतलब विजय जी का बहुत भैया हम विजय जी का एक नंबर काम रहा है। हमको क्या होता है, हमको एक मॉडल चाहिए होता है हर फोटो शूट में। तो आप हमारा मॉडल जो है आज हमको मिल गया था और हमने स्टार्टिंग से पैसा को पकड़ लिया था। अब साल काम की बात तो ये हमारा दोनों का रूम भी एक रूम भी इन्होंने सेलेक्ट किया और मैं इसके लिए जितना कहूँ उतना कम है। बाकी आज का शूट बहुत ही शानदार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कमेंट बॉक्स में डाल के बता देंगे हमारा आज का जो ये जो 3D म्यूजियम था इसका विजिट आपको कैसा लगा। और बहुत ही विजय भाई ने मजा आया, हर तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी दी है। हम चाहेंगे कि आप भी कभी आएँ और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठाएं। मतलब इस दुनिया में आए हो तो जो बैंकॉक घूमने आया है ना, तो मैं ये कहूँगा बैंकॉक आने से पहले कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कुछ चीज़ें कौन कौन सी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। आज का जो दिन था बहुत ही शानदार दिन रहा। आर्ट इन पैराडाइज देखा और आर्ट इन पैराडाइज ही सबसे ज़्यादा शानदार आप लोगों ने क्या कहें इसके बारे में, बहुत ही मज़ा आया। आज क्या है, हम लोग सुबह थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से हम लोग के पास आज एक ही जगह जा पाए। सुबह का हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग जाएंगे पटाया बीच पर, जो सबसे शानदार जगहों में से एक है पटाया बीच। और उसके बाद फिर एक जगह और जाएंगे, मेरे पास शायद चार्ट में है उस जगह का नाम, फिलहाल तो आज के लिए तो मैं कहूँगा कि आज का जो मेरा पूरा दिन था वो बहुत ही अच्छा है। और फिर से एक बार ये कहूँगा थैंक्स टू पेटीएम ये जो इवेंट हुआ है, और इस इवेंट के लिए मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल एक
एक नॉर्मल आदमी को आप लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया और उसको एक नए नए माहौल में मिला दिया, तो क्या कहूँ उसके बारे में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमारे शंकर जी भाई साहब, तो महेंद्र जी भाई साहब, बहुत ही मज़ा लिया आज हम लोगों ने आर्ट इन गैलरी में। 3D पिक्स का भी खूब मज़ा लिया है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं आज का व्लॉग करता हूँ एंड कल के व्लॉग में डे 2 का व्लॉग हम लोग फिर कल सुबह शूट करेंगे। सुबह 9 बजे हमारा मीटिंग पॉइंट है लॉबी में ही, तो 9 बजे बुलाया, 9 बजे आएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी बैंकॉक के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं और बैंकॉक आना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो काफ़ी यूट्यूबर्स ने बताई है। मैं भी एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं तो आप बैंकॉक आइए। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, पर कुछ बातें हम लोगों को यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ कंपैरिजन्स है जो मैं इंडिया के साथ और इंडिया का बैंकॉक के साथ करना चाहूँगा। जैसे कि एक तो बैंकॉक जो है वो पूरी तरह से क्लीन सिटी है। आप यहाँ पर कहीं भी इधर उधर थूक नहीं सकते हैं, स्पिट नहीं कर सकते हैं, आप लोग गंदगी नहीं फैला सकते हैं कहीं पर भी। आप लोगों के ऊपर सीधा फाइन होता है। इंडिया में तो माशाल्लाह क्या कहें इस बारे में। तो दूसरा, यहाँ की जो करेंसी है वो लगभग 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये के बराबर एक थाई बात हो, तो करेंसी का भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी बड़ी चीज़ कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। 2000 बात में आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप जल्दी वीज़ा चाहते हैं तो आप 2200 बात पे कर सकते हैं, वरना लाइन में लगकर भी आप वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा तो क्या कहें। और हाँ, एक मेन कंडीशन जो है यहाँ की, अगर यहाँ की पुलिस से या इमिग्रेशन काउंटर पर या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर या कस्टम्स में कहीं पर भी आप किसी पुलिस वाले से आपकी कोई बहसबाजी हो जाती है या वो आपसे कोई प्रश्न करे और आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। और उसको जो है, अगर आपकी बात समझ में नहीं आती है तो आपके लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये। और एक जो है, आप कभी भी जब बैंकॉक के लिए ट्रिप बना रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करें कि जो करेंसी एक्सचेंज है वो इंडिया में ही करवा लें, क्योंकि यहाँ पर आकर जब आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको थोड़ी करेंसी महंगी पड़ती है। यहाँ जब एक्सचेंज कराते हो तो करेंसी आपको थोड़ी महंगी पड़ती है। तो मेरा बेसिकली मानना ये है कि आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करवा के आएँ। हाँ, एक्स्ट्रा आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूल यहाँ का है कि अगर आप बैंकॉक में आ रहे हैं तो आपको लगभग 10,000 थाई बात आपके जेब में होने चाहिए, अदरवाइज़ आप वापस डिपोर्ट कर दिए जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि हम लोग तो कंपनी के टूर पर आए हैं, कंपनी ने हमारा सारा खर्च बियर किया है, तो हमें 10,000 थाई बात की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग तो बिना थाई बात के भी काम चला रहे हैं। खैर, ये जो कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी बैंकॉक बहुत अच्छी जगह है, थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है। कल हम लोग जाएंगे पटाया बीच में और भी बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग आपसे कल।